Hello everyone. So today I'm going to teach you the fourth poem from book Beehive of class 9th. Okay. So the title of the poem is The Lake Isle of Innisfree, and this beautiful poem is written by William Butler Yeats. Alright. So this poet William Butler Yeats belonged to Ireland. He's an Irish poet, and this place Innisfree is the name of a place, and it exists in reality. It is a place in Ireland. Okay, so the Lake Isle of Innisfree means a lake in the place of Innisfree of Ireland. All right. Okay, let's take the overview of the poem given in this blue box. This well known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. This poem is a lyric. Okay, so what is being described in this poem is about the poet's longing. Longing means desire, इच्छा. किस चीज के लिए? For the peace of tranquility, शांति के लिए. What is the meaning of tranquility? Tranquility means calmness, the state of being tranquil. Tranquil means calmness, shanti, ekant of Innisfree, of this place. That means this place called Innisfree is a very calm place, is a very peaceful place, just very close to nature. A place where he spent a lot of time as a boy. As a boy means as a child in his boyhood days. This poem is a lyric. Now, lyric means a musical poem. Now, lyre is a musical instrument, and if any poem sung with the accompaniment of this instrument is called a lyric, a musical poem. Okay, so when this poet W.B. Yeats was a young kid or was in his boyhood days, then he used to go to this place Innisfree and spend time there. And those memories are still fresh in his mind. क्या है, जब वो बचपन में उस जगह पे गए थे या जाया करते थे, बहुत जाया करते थे, टाइम स्पेंड किया करते थे, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था उधर. ठीक है, एंड उस जगह की याद उन्हें अभी भी है, उनके माइंड में बिल्कुल फ्रेश है. ठीक है, क्योंकि अब वो बड़े हो चुके, वो एक पोइट बन चुके हैं, लेकिन वो इस जगह पे कब जाते थे? जब वो यंग थे, जब वो अपने बॉयहुड डेज में थे. ठीक है, छोटे थे मतलब. ओके, इस पोम में 3 स्टैंजास हैं और हम तीनों को 1 बाय 1 लेते हैं. पहले हम स्टैंजा 1 पे आ जाते हैं. ऑलराइट, पोइट कहते हैं, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee-loud glade. Okay, I will rise and go. Rise का मतलब stand up, means poet कहते हैं मैं अभी. I will rise and go now. Now means अभी, मैं अभी उठ के वहाँ जाऊँगा. कहाँ जाऊँगा? Innisfree place में, इस जगह पे जो आयरलैंड में है, एक ब्यूटीफुल सी प्लेस है जहाँ वो छोटे थे तब जाया करते थे. एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ट देयर, क्या बनाएंगे वो वहाँ पे? एक छोटा सा कैबिन. कैबिन मीन्स रूम, वहाँ पे बनाएंगे. और वो रूम क्या है? रूम का ही मतलब वहाँ रहने की जगह, चाहे वो झोपड़ी हो या एक छोटा सा कमरा हो. ठीक है, ऑफ क्ले एंड वेटल्स. क्ले मीन्स मिट्टी, वेटल्स मीन्स जो स्टिक फेंस बनाने में काम आती है. ट्विस्टेड, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियां जिन्हें कह सकते हैं, जिससे फेंस बनती है, मतलब जो गार्डन की दीवार या बाउंड्री बनती है.
9 bean rows will I have there। और वो क्या है, अपने घर के आसपास क्या है, 9 बीन क्या होती है, सब्जी, फ्रासबिन, बीन्स होती है ना डिफरेंट टाइप की। तो वो कहते हैं मैं 9 रोज में बीन्स उगाऊंगा वहाँ। आई हैव फॉर द हनी बी अ हाइव। हाइव मीन्स क्या होता है, हनी बी जहाँ रहते हैं, मतलब मधुमक्खियों के रहने की जगह को हाइव कहते हैं। और वो कहते हैं मैं वहाँ पे एक हाइव भी बनाऊंगा हनी बीज के लिए। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लेड? ग्लेड मीन्स ओपन स्पेस, क्लियर स्पेस। कहते हैं मैं उस जगह पे अकेले रहूंगा। कौन सी जगह पे? जहाँ पे हनी बी गुनगुनाया करेंगी। उनकी गुनगुनाहट को क्या कहते हैं? बजिंग साउंड। क्योंकि इस सब से उन्हें क्या मिलती है? पीस मिलता है उन्हें। और शांति के लिए तो वो जा रहे थे वहाँ, एकांत और मन की शांति के लिए वो इस जगह पे जाना चाहते थे। और ये सारी चीज़ें उन्हें अच्छा फील करवाती हैं। चलिए सेकंड स्टैंजा में देखते क्या है। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings. There midnights all a glimmer and noon a purple glow and evening full of the linen's wing. ओके अब उन्होंने एक्चुअली में मोर ज़्यादा डिस्क्राइब किया है कि कौन कौन सी चीज़ें उन्हें वहाँ शांति पहुँचाती हैं, अच्छी लगती हैं, जिनसे उन्हें वहाँ जाने का मन करता है। आई शैल हैव पीस देयर, वो इंस फ्री में अभी जाएंगे और वहाँ पर अपने लिए घर बनाएंगे, ये करेंगे और उनको वहाँ अच्छा लगता है, शांति मिलती है। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, और वो कहते हैं वहाँ जाके जो आनंद की अनुभूति होती है, मतलब जो सुख मिलता है उस जगह पे जाके, उसको धीरे धीरे महसूस किया जाता है। ड्रॉपिंग स्लो का मतलब होता है फेल्ट ग्रेजुअली, स्लोली। राइट। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ मॉर्निंग। अच्छा, व्हील्स का मतलब क्या होता है? व्हील का मतलब क्या होता है? घूंघट। ठीक है, आपने देखा है गाँव में, देहात में औरतें अपना मुंह ढकती हैं, मतलब अपने पल्लू से। अब वो साड़ी चुन्नी जो भी होती है तो उसे व्हील कहते हैं। तो यहाँ पे व्हील का मतलब क्या है? ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील ऑफ मॉर्निंग। जो सुबह होगी वो बड़ी मिस्टी होगी। मिस्टी का मतलब धुंधली होगी, या तो वो मौसम क्लाउडी होगा और सुबह जो है आने को तैयार होगी। मतलब सुबह का जो ब्राइट लाइट होती है वो ढकी हुई है बिकॉज ऑफ व्हील। यहाँ पे क्लाउडी और मिस्टी वेदर को कहा गया है। तो सुबह का जो नज़ारा होता है, सुबह का जो मौसम होता है, वो भी बहुत ज़्यादा मन को शांति देने वाला होता है। और उस मॉर्निंग में क्या होती है? क्रिकेट। अब क्रिकेट क्या होती है? क्रिकेट एक बर्ड होती है, ठीक है। वो किसके जैसे लगती है? समवॉट ग्रास हॉपर जैसी दिखाई देती है, लेकिन उसके क्या है? ग्रास हॉपर से थोड़े छोटे पैर होते हैं, तो ग्रास हॉपर फैमिली का ही बोल सकते हैं उसे। तो सुबह की उस धुंधले से मौसम में क्या होती है? क्रिकेट सिंग्स। अब क्या होता है, क्रिकेट जो इंसेक्ट होते हैं उसमें भी जो मेल क्रिकेट होता है वो एक चर्पिंग साउंड निकालता है, उसको सिंगिंग ऑफ क्रिकेट कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? वो बर्ड का गाना या आवाज़ निकालना पोइट को शांति पहुंचाता है। देयर मिडनाइट ऑल अ ग्लिमर, और सारी रात, ऑल मीन्स देयर मिडनाइट, मतलब रात का समय भी इतना सुहाना होता है। ग्लिमर मीन्स शाइनिंग होता है, बिकॉज ऑफ द ट्विंकलिंग स्टार्स इन द क्लियर स्काई। आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा होता है। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और दिन में भी जब सूरज की चमक होती है तो वो भी अलग ही तरह का एक ब्यूटीफुल सीन होता है, जिसे देखकर पोइट को एक इनर पीस मिलता है। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेंस विंग। लिनेट क्या होती है? लिनेट एक
छोटी बर्ड होती है जो जनरली मोस्टली मतलब ग्रे या ब्राउन कलर की होती है, लेकिन उनकी बीक छोटी होती है, ऑलराइट। तो वो जब आसमान में शाम को आसमान में उड़ती है तो ये देख के पोएट को संतुष्टि मिलती है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा नेचर के क्लोज पाते हैं, इन द लैप ऑफ नेचर कहते हैं ना जिसे, वो ऐसा फील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्हें शांति पहुंचाती हैं, उन्हें सुख पहुंचाती हैं। ओके, चलिए आए स्टैंजा नंबर 3 पे चलते हैं। आई विल राइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। नाइट एंड डे का मतलब क्या है? ओके, स्टैंजा पूरा कर लेते हैं। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग with low sounds by the shore, while I stand on the roadway or on the pavement's gray, I hear it in the deep heart's core. Alright, वो कहते हैं आई विल राइज एंड गो नाउ, मतलब उनके अंदर ये जो इतनी तीव्र इच्छा है इस जगह पे जाने की, वो किसी न किसी कारण से होगी। मतलब ये जगह उन्हें कुछ ना कुछ इस तरह से परेशान तो कर रही होगी कि वो उनके अंदर बहुत इच्छा जाग रही है कि वो उस जगह इनिसफ्री में जाएं। देखिए, या तो बिजीनेस ऑफ द सिटी लाइफ उन्हें परेशान कर रही है, या वो उससे फेडअप हो चुके हैं। एंड इनिसफ्री एक पीसफुल जगह है जो कि एक लेक आइलैंड है, वो वहाँ पे जाके अपनी थकान को, अपने एग्जॉस्टनेस को ख़त्म करना चाहते हैं। वो अब थक चुके हैं अपनी लाइफ की बिजीनेस से, अब वो क्या है, नेचर के पास जाना चाहते हैं और वहीं हमेशा के लिए बस जाना चाहते हैं। तो उनके अंदर बिल्कुल वो इस चीज़ के लिए वेट नहीं कर सकते, वो कहते हैं मैं अभी उठूँगा और जाऊँगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, नाइट एंड डे मीन्स ऑल द टाइम, हर समय, मतलब मैं हमेशा के लिए वहीं चला जाऊँगा। और ऑल फॉर ऑलवेज मतलब हमेशा के लिए। डे एंड नाइट आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड बाय द शोर। और क्या है, उन हमेशा दिन रात उनके क्या है, दिल में या उनके मन में ये आवाज़ सुनाई देती है। कौन सी आवाज़? ये जो लेक आइल ऑफ इनिसफ्री में जो वो लेक है, उसका पानी क्या है, शोर से टकराता हुआ जो साउंड प्रोड्यूस करता है, वो बड़ा मेलोडियस उनको लगता है। तो ये क्या है, उनके मन में बसा हुआ है। और जब वो क्या है, while I stand on the roadways, मतलब वो सिटी की बिजी लाइफ में जब वो हैं, तो वहाँ पे गाड़ियों का हसलिंग एंड बसलिंग साउंड ऑफ द नॉइसेस ऑफ द ट्रैफिक, वो उनको परेशान करता है। जब वो रोड पे खड़े हैं या पेवमेंट पे खड़े हैं, ग्रे पेवमेंट, पेवमेंट मीन्स रास्ते पे खड़े हैं, तब वो उन सब चीज़ों से परेशान आते हैं। तो केवल उनका दिल उस साउंड को याद करता है जो कि इनिसफ्री में, जो लेक में पानी की लहरें उठ के किनारे से, शोर मीन्स किनारे से टकरा कर वापस एक आवाज़ प्रोड्यूस करती हैं, लहर प्रोड्यूस करती हैं, तो वो उन्हें याद आती है, उनके दिल में बसी हुई है। आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर। डीप हार्ट स्कोर मीन्स द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट, मतलब उनके दिल के अंदर तक वो आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। तो मतलब ये चीज़, सिटी की बिजीनेस लाइफ से वो इतना थक चुके हैं कि उन्हें इस जगह पे जाए हुए वो पुराने दिन याद आते हैं, और वो इस जगह पे जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इच्छुक होते हैं। ठीक है, तो वैसे ये लेक आइल ऑफ इनिसफ्री इतना ब्यूटीफुल है या नहीं है ये तो नहीं पता, क्योंकि हम यहाँ नहीं गए, लेकिन पोएट ने उसको और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना दिया है अपनी पोम के थ्रू। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।